quick look as to how Akshay Shinde met his end. If I could give you the highlights of the reports that we have here. We hear Shinde was being taken to Badlapur from the Taloja jail, where he was imprisoned in the case where he was caught molesting, raping two minors. Shinde snatched the Inspector Nilesh More's revolver. The accused, Akshay Shinde, allegedly fired about 4 bullets at the cops while inside the cop van. Another cop, Sanjay Shinde, fired back at Akshay. The injured Akshay eventually was taken to the hospital and he died. Cops Sanjay and Nilesh also sustained injuries. They were hospitalized. This is exactly the report that we have from the Maharashtra police on how this man was killed in an encounter. Now, the state of Maharashtra, of course, divided over killing of Badlapur rape accused. Akshay Shinde, who sexually assaulted 2 minor girls at a school in Mumbai's Badlapur, was shot dead by the Maharashtra police. In fact, Shiv Sena celebrated after Akshay's death. We saw sweets and a celebration that panned out in some areas near Badlapur. Netas held "No Mercy for Rapists" posters. The police is now claiming that Akshay allegedly snatched a police officer's service revolver, opened fire while he was being transported to Thane in a police van. Akshay has succumbed to the injuries after the policeman fired back. I gave you the chronology of how this shootout really happened. We know that Eknath Shinde, Maharashtra Chief Minister, has taken cognizance of this incident. Deputy Chief Minister has slammed opposition for raising questions over anything and everything. Basically, the opposition has asked for a judicial inquiry into the encounter, smelling and suspecting something suspicious in this case. Now, of course, the current ruling in Maharashtra claim that they are going to, this is the version of the police and they will rely on the police's version with this case. Opposition raising many questions, targeting Maharashtra government, demanding a judicial inquiry, saying that this does not sound right. Badlapur minor sexual assault case accused Akshay Shinde was taken into custody by the Thane crime branch officials. They took his custody from Taloja prison in another case that was registered by his wife for unnatural sex and assault. Police officials were taking Akshay Shinde to the Thane Central Crime Branch unit where when they reached around 6:15 p.m. at the Mumra bypass. This is the same bypass you can see over here. They reached here at 6:15 p.m. and that is when Akshay Shinde snatched Assistant Police Inspector Nilesh More's revolver and then fired 3 shots. He also injured API Nilesh More, after which PI Sanjay Shinde fired 1 shot and injured Akshay Shinde. They then drove towards Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital in Kalwa, where Akshay Shinde was declared dead, while Nilesh More and Sanjay Shinde was referred to the Jupiter Hospital. With camera person Swaraj and Dipesh Tripathi, this is Divyesh Singh in Thane for India Today. एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ है, उसके पैर में गोली लगी हुई है, जुपिटर अस्पताल में उनके ऊपर इलाज चालू है। बाकी के पुलिस भी उपचार ले रहे हैं, जुपिटर अस्पताल में वो दाखिल है। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला, रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना, ताकि कोर्ट में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा, बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी जलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है हम लोग को, मरने का है। देखिए, बदलापुर की घटना जब से घटी है तब से राजनीति और राजनीतिक दबाव इसमें हमने पाया है। उसी तरह से जो ठाणे जिले से अपना पूरा राजनीति चलाते हैं उनके लिए भी ये केस एक नासूर बन गया था कि बदनामी उनकी हो रही थी और इसलिए फिर ये केस ही खत्म हो जाए, इसलिए जो आरोपी है उसे मरने की संधि एक परिस्थिति तैयार की गई और एनकाउंटर किया है या उसे खुद उसने आत्महत्या की है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि इस तरह से न्याय की हत्या करने की कोशिश। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी,
उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला दी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जवान ने गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। पुलिस का पिस्तौल छीनकर वो पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, फायरिंग कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई और उसमें वो इनकाउंटर हुआ है। मुझे लगता है इसमें राजनीति करने की जरूरी नहीं है। उनको फांसी मिलनी चाहिए थी और फांसी मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उनके गलती से अगर वो पुलिस पर हमला कर रहा था तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मतलब उनके ऊपर गोली चलाना पड़ा और उसमें मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होना, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आजकल रेपिस्टों से और इनामी मर्डरर्स से, जिसपे 20,000 1 लाख रुपए का इनाम हो, अगर ये पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो विपक्ष को दर्द क्यों होता है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह, ये लोग मारे गए हैं। आज भी सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां दर्द हो रहा है, जाकि जाति देख के मारी जा रही है भाई साहब। लेकिन यही उदय सिंह, अनुज सिंह मारा गया तो कोई ट्वीट नहीं हो रही है। मंगेश यादव पे बहुत ट्वीट। बदलापुर में जो लोग कह रहे थे कि तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत फांसी की सजा दो, वो पुलिस पे गोली चलाता है, एनकाउंटर में मारा जाता है, तो शरद पवार की पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था, उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बातें सामने आई थी। उसके 3 पत्नियों की भी इंक्वायरी हुई थी, इसकी भी इंक्वायरी चल रही थी। इससे भी कुछ बातें सामने आई थी क्या उससे सरकार को या किसी विशिष्ट संस्था को अड़चन पैदा होने वाली थी? ऐसे अनेक सवाल जो है इस एनकाउंटर में खड़े हुए हैं। पुलिस के बंदोबस्त में जो आरोपी विकृत है, ये मान भी लिया जाए तो इतना उसको बंदूक चलानी आती है, ये मानना भी बहुत कठिन है। ये सारा मिलीजुली बात है, ऐसी शंकाएं उपस्थित हुई है और कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश हुई, ऐसा भी हमें लगता है। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए।